نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے. تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں. حدیث نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر. اس لیے اللہ کے راستے میں وقت لگایا کرے. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، بخشش کی دعا، کیا دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. حدیث نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خواہشیں جوان رہتی ہیں. ایک مال کی ہوس، دوسری لمبی عمر کی تمنا. وہ بڑا بخشش کرنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما. حدیث نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. سامعین ناظرین، میری اسلامی بہن اور بھائیو، اس حدیث مبارکہ کو غور سے سننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے معمول بنانے زندگی کا ہر دن ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں، صبح یا شام کو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اتنا پڑھنا ہے. اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد المعین پور تمام کر دی جائے. پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو اس نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، اس کو بھی دعا میں ضرور مانگنا چاہیے. کیا دعا مانگی تھی حضرت یونس علیہ السلام نے؟ قرآن میں اس کا یہ دعا ہے، موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے. حدیث نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے. حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی
काम सख्त तकलीफ व परेशानी में डाल देता तो आप ये दुआ पढ़ते। क्या दुआ? या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ए जिंदा और हमेशा रहने वाले, तेरी रहमत के वसीले से तेरी मदद चाहता हूं। हदीस नबवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब कुछ लुट गया। गौर से सामीन और नाजरीन, मेरे इस्लामी बहन और भाई, इस हदीस मुबारक को गौर से सुने और इस पे अमल करें और जहां तक हो सके इसको शेयर करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब कुछ लुट गया। अल्लाह ताला हमें हिफाजत, इसलिए अपनी नमाजों की फिक्र करें और कोई भी नमाज ना छोड़े, 5 वक्त नमाज पढ़े। इस्तिगफार की तौफीक तुम्हारे कामयाब होने की पहली निशानी है। तो ये समझ लो मेरे इस्लामी बहन भाइयों, जो इस्तिगफार की कसरत करता ना, तो वो उसकी इस्तिगफार की तौफीक मिलना, इस्तिगफार की कसरत जो शख्स करेगा ना, तो वो इसकी कामयाब होने की पहली निशानी है। जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी होगी ना, तो वही तो इस्तिगफार करेगा। इस्तिगफार के बहुत फायदे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबी इलैहि, या अस्तगफिरुल्लाह, इसलिए कसरत करें, कम से कम 1000 मरतबा मामूल बना ले जिंदगी में। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सुरखुरू और कामयाब फरमाएगा दुनिया आखिरत में। तौबा इस्तिगफार के समरात, गुनाहों की बख्शिश, अल्लाह ताला की मोहब्बत का हुसूल, रहमतों वाली बारिश का नजूल, माल व औलाद में सादत, ताकत व कुव्वत में इजाफा, अच्छी और खुश ऐश जिंदगी मिलेगी किसको? जो तौबा इस्तिगफार करता है, कसरत से करता है। मामूल बना लो जिंदगी में इस्तिगफार 1000 मरतबा। मोहताजी और गरीबी 7 चीजों से आती है। जल्दी नमाज पढ़ने से। नंबर 2, खड़ा होकर पानी पीने से। नंबर 3, मुंह से चिराग बुझाने से। और नंबर 4, आस्तीन या दामन से मुंह साफ करने से। नंबर 5, असर के बाद घर में झाड़ू देने से। और नंबर 6, दांतों से नाखून तोड़ने से। कई लोगों को आदत होती दांतों से नाखून को काटते हैं, इसलिए ये भी बुरा अमल है, इसको ना करें। और नंबर 7, फजर की नमाज के बाद फौरी सो जाने से। कब्र में काम आने वाले 7 अमाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? इन लोगों के मरने के बाद 7 अमाल का अजर जारी रहता है जबकि इंसान अपनी कब्र में होता है। किसी को इल्म सिखाया हुआ। नंबर 2, नहर खुदवाई हो, पानी जारी करवाया हो। नंबर 3, पानी का कुआं बनवाया हो। नंबर 4, दरख्त लगाया हो। या 5, मस्जिद बनवाई हो। नंबर 6, कुरान मजीद को अपने पीछे छोड़ गया हो। नंबर 7, अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी हो। इनका सवाब उसको मिलता रहता है। मुसलमान पर 5 हक के गौर से सुनना। सलाम का जवाब देना, मरीज की इयादत करना, मरीज का मिजाज मालूम करना और जनाजे के साथ चलना, दावत कबूल करना, शीख का जवाब देना। यह भी बुखारी की इसका हदीस का हवाला दिया गया। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नेक बीवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया फायदा उठाने की चीज है और दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा देने वाली चीज नेक बीवी है। मुस्लिम की हदीस से आगे हवाला दिया है। 5 खूबसूरत हदीस। सामीन नाज़रीन, मेरे इस्लामी बहनों भाइयों, अमल की नीयत से देखें ना, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। जो शख्स हर वक्त बावजूद रहेगा, इस पर जादू का असर नहीं होता है। सूद और हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती है। नंबर 3, हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रहता है, इसलिए हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। नंबर 4, जिसने अपनी नमाजों की फिक्र छोड़ी, अल्लाह ने इसकी फिक्र छोड़ी। और नंबर 5, अल्लाह इस शख्स को आबाद रखता है जो हदीस सुनकर दूसरों तक पहुंचाता है, इसलिए खुद भी
इन पे अमल करें और दूसरों तक भी पहुंचें। तो इसलिए आपसे मोहब्बाना आगे बढ़ने से पहले आपसे मोहब्बाना दरखास्त है, गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके जहां भी हो सके शेयर कर दो, ताकि कोई भी अमल कर ले आप और हमारे लिए निजात का जरिया बनेगा, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो अगर देखना चाहते हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। किसी मुसलमान को जलील करना, हदीस नबी, किसी मुसलमान को जलील करना। सामीन नाज़रीन, जितना हो सके ना इस वीडियो को साफिने से वो शेयर करो अपने ग्रुप में, जहां भी हो सके कोई भी अमल कर ले आप और हमारे लिए निजात का जरिया बनेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी इसमें हदीस मुबारक हैं जिनको अमल करने से हमको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, इंशाल्लाह हर गुनाह से बचेंगे हम। तो इसलिए इसको जितना हो सके वीडियो को खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। और लाइक भी करें और कमेंट में जरूर राय का इजहार जरूर फरमाना। किसी मुसलमान को जलील करना, क्या किसी मुसलमान को जलील करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी गौर से सुनना, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसकी इज्जत की जाती है, तो अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसे अल्लाह की मदद की जरूरत होती है। सुभान अल्लाह। इसलिए फिर से जरा मैं एक हदीस मुबारकों को पढ़ता हूँ, इसको दिलो दिमाग में बिठाना, कभी किसी मुसलमान को जलील न कर, किसी मुसलमान को जलील करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसकी इज्जत की जाती है, तो अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसे अल्लाह की मदद की जरूरत होगी। हदीस के नीचे हवाला दिया गया है। 3 गुना माफ नहीं होंगे, 3 गुना माफ नहीं होंगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला बंदू के 3 गुना माफ नहीं करेगा। इन गुनाहों के अलावा जिस कदर गुनाह होंगे इनको माफ करेगा, लेकिन इन 3 गुनाहों को कभी माफ नहीं फरमाएगा। नंबर 1, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना। नंबर 2, जादू करना या करवाना किसी से। नंबर 3, अपने मुसलमान भाई के साथ हसद करना। तशरी यानी अगर कोई आदमी इन गुनाहों से तौबा किए बगैर मर जाता है तो इसको माफ नहीं किया जाएगा। इन गुनाहों के अलावा और जितने गुनाह होंगे अगर अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर देगा। शिर्क इस कदर संगीन जुर्म है कि शिर्क करने वाले आदमी का कोई अमल कबूल नहीं किया जाता है। जादू ये वो बदतरीन गुनाह है जो आदमी को ईमान से खारिज कर देता है। हसद ये ऐसा जहरीला गुनाह है जो आदमी के साल की तमाम नमाजें, तिलावत, सदकात और दीगर इबादत एक लम्हे में बर्बाद कर देता। लिहाजा इन गुनाहों से बचने का एहतमाम करें, ठीक। नमाज में सुस्ती करने का अंजाम, गौर से सुनना मेरे सामीनों ने, दोबारा नमाज में कभी सुस्ती नहीं करना। नमाज में सुस्ती जो करता है उसका अंजाम क्या होता है? इसकी उम्र से बरकत छीन ली जाती है, इसके चेहरे से स्वालिहीन की निशानी मिटा दी जाती है, इसके किसी भी अमल का अल्लाह अजर नहीं देता है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इसकी दुआ आसमान की तरफ बुलंद नहीं होती है, नेकों की दुआओं में इसका कोई हिस्सा नहीं होता है। हाँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। एक रोज हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूं, पानी के कतरे और रेत के सारे जर्रे गिन सकता हूं, लेकिन इस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता हूं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता रहता है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा गुमान वैसा ही मामला। हदीस मुबारका, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी में अपना रब का ये इरशाद मुबारक नकल फरमाते हैं, मैं अपने बंदू के साथ वैसा ही मामला करता हूं जैसा कि वो मेरे साथ गुमान रखते हैं, और जिस वक़्त वो मुझसे दुआ करते हैं तो मैं इसकी दुआ के साथ होता हूं। तो इसलिए गुमान अच्छा रखें, अल्लाह से गुमान अच्छा रखें, जैसा गुमान रखोगे वैसा अल्लाह ताला आपके साथ मामला फरमाएगा।
फरमान इलाही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और इसके सब फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर दुरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। इसलिए सामीन और नाजरीन, इसलिए बहन और भाइयों, जिंदगी का ये मामूल बनाए खूब कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दुरूद पाक की फजीलत, हर कतरे से फरिश्ता पैदा होता है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा मुश्कबार फरमान, अल्लाह पाक का एक फरिश्ता है कि उसका एक बाजू मशरिक में, दूसरा बाजू मगरिब में। जब कोई शख्स नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दुरूद भेजता है, वो फरिश्ता पानी में गोता खाता है, खाकर अपने परों को झाड़ता है। उसके परों से टपकने वाले हर कतरे से एक एक फरिश्ता पैदा करता है। वो फरिश्ता कयामत तक उस दुरूद पढ़ने वाले शख्स के लिए इस्तिगफार करता रहता है। सुभान अल्लाह। रोजाना 100 मरतबा पढ़ें, जज़ अल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अलहु। रोजाना 100 मरतबा पढ़ें, जज़ अल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। इसका सवाब 7000 फरिश्ते 1000 दिन तक लिखते रहते हैं। रमजान मुबारक में एक नेकी का बदला 70 नेकियां हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को हो सके शेयर करें और लाइक भी करें, कमेंट में जरूर राय का भी इजहार करें और दुरूद इस्तिगफार की कसरत करें। मामूल बना ले जिंदगी का 1000 मरतबा इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटा और आसान दुरूद शरीफ है, पढ़ें। अल्लाह के रसूल को राजी कर ले, ये दुनिया आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी कामरानी है। अपने ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।